السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت یم رب ذوالجلال اس بھی اک ساتنس یت بابرکت مجلس میں شریک سپدن توفیق عنایت کور بی اسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت۔ درس قرآن کے سلسلس مز کر میں تہ برونٹ کن سورہ آل عمرانک ز آیہ مبارکہ تلاوت، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 19۔ ام بروٹم یم زن آیات مبارکہ تمن مز پوڑ اسہ کہ خطاب یا زن روح سخن سہ زیادہ پہمت تات وفدس کنت اس وفد زن در خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر سپدیو نجران پہ۔ یم آیات یم زن میں تہ برونٹ کن تلاوت کر ان آیات کا روح سخن بھی اسی وفد کی طرف ہے، یعنی اہل نجران یم زن انہی کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمان شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ بہرحال جو یہ نجران کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، جس وفد حاضر اوس گومت، انہوں نے دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کی تھی اور تمام یم زن دلائل تم تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن برونٹ کن اور ان کے سامنے بالکل حق کو نکھار کر اور واضح کر کے پیش کیا۔ بہرحال گھن گھے یہ کہ یم گھن ان ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور یم گھن داخل گھن کت مز اسلامس مز۔ مگر پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ دنیاوی اغراض کے خاطر دنیا کی زن مال چاہے وہ مال کی محبت تھی یا سواریوں کی محبت تھی یا باقی دنیاوی یم زن نفسانی خواہشات ان کی محبت تھی، ان کی وجہ سے اور ان محبتوں کو ترک نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بہرحال روایت میں آمد اس کا شدید اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا، یعنی انتہائی دل کو تنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دل میں ایک طرح کی کڑن پیدا ہو گئی کہ میں یمن برونٹ کن واضح دلائل تھے، میں یمن برونٹ کن اسلامچ واضح حقانیت پیش کر، اب اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنی جائے گمان کہ یم اہل کتاب، یہ تورات کے ماننے والے ہیں، یہ انجیل کے ماننے والے ہیں، یم گھن سارے کھت گۄڈنیتھ کت پہ ایمان ان یمن دلائل پہ، کیونکہ یہ دلائل ان کے سامنے تورات میں بھی آئے ہیں اور انجیل میں بھی۔ بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ایک قسم کا ایک بار ہو گیا کہ یہ کیا دلیل، اور یمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپدیو یہ اندیش کہ شاید تو میں یہ دعوت ان برونٹ کن پیش کریں کی، تو اس پر یہ آیات نازل ہو گئی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں اپنا دل تنگ کرتے ہیں، تہ کیا پن دل تنگ کرن، اس بات پر آپ تنگ کرتے ہیں اپنے دل کو کہ یہ بیوقوف لوگ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں، آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا، حق یہ زن یہ ان کی دلیل کا محتاج نہیں ہے، حق تو اسلام یہند اسلام قبول کرنک محتاج نہیں، شہید اللہ، بلکہ حقیقت یہ ہے
शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह गवाही देता है। अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसे ढारस बनाई जाती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत मकाम क्या है कि अल्लाह खुद शहादत देता है, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह बजाते खुद गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यानी ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना माबूद समझते हैं, या ये जो अल्लाह के सामने अल्लाह के बगैर बाकी तीन माबूद मरियम को और ईसा को अपना माबूद समझते हैं, आपने तो इनके सामने वाज़ेह दलाइल पेश की थी कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, ये माबूद नहीं है। मरियम ये भी अल्लाह की बंदी है, ये अल्लाह के माबूद नहीं है। तो इन्होंने इन आयात को मानने से, इन दलाइल को मानने से इनकार कर दिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने दिल मुबारक को इस बात पर तंग मत कीजिए, तहमा सब दिनों कुड़न या तहमा सब दिनों दिल मुबारक टांके, बल्कि हकीकत ये है कि इस बात की गवाही खुद अल्लाह देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अच्छा, वल मलाइका, अल्लाह ही सिर्फ गवाही नहीं देता है बल्कि वल मलाइका, मलाइका भी इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। वह उलुल इल्म, और इल्म वाले लोग भी, यानी वो लोग जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकी इल्म अता किया है। बहरहाल अमी तफसीरी ब्रोट और इमाम बिल क़िस्त, वो इल्म वाले जो किस्त पर, जो यज़न राह रास्त पर कायम है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने असल में इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौसला अफजाई करना कि आप अपने दिल मुबारक को या तहमा करियो पन हौसला पस्त के कि तह त्रो दिल सोरे कि शायद यम के अन ईमान तो क्या गो सोरे मामले बिगड़ो ना, बल्कि इनकी क्या औकात अल्लाह के नजदीक है, इनके कबूल करने से हक नहीं होगा, या इनके ठुकराने से नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हक बातिल नहीं साबित होगा, बल्कि हक ही है, और इस हक की गवाही खुद अल्लाह तबारक व तआला भी फराहम करता है। बहरहाल उलमा से लेखन कि शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब ये अल्लाह कैसे गवाही देता है? बहरहाल इसकी तशरीह में उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने माबूद बरहक होने की गवाही दो तरीकों से दी है। एक ये कि उसने वक्तन फवक्तन अपने बरगुज़ीदा पैगंबर इंसानों की तरफ भेजे हैं, और रिवायतन मुशामिल कमो बेश 1,24,000 पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की तरफ मबूस किए, और इन सबों का कलिमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह। सबों की तालीम यही थी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और यही नहीं बल्कि अक्सर पैगंबरों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताबें भी नाजिल की। उन किताबों का पैगाम भी क्या था, उन किताबों की तालीम भी की क्या थी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये गया शहादत, यानी ये अल्लाह की शहादत है। एक दूसरी शहादत अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे भी दी है कि दुनिया में जो भी अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां हैं, यम के अल्लाह तबारक व तआला कायनात में जो बिखरी पड़ी निशानियां हैं, ये निशानियां भी अल्लाह के एक होने की जो दलाइल पेश करते हैं और उसका सबूत देते हैं। अगर इंसान अगर वो तासुब की ऐनक निकाल दे और अगर वो जरा सा गौर व फिक्र इन कायनात की इन हकीकतों पर करे, तो वो भी इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस कायनात को चलाने वाला, इस निजाम को चलाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। अगर इस बुझो, अब देखिए सूरज का कितना मुनज़्ज़म निजाम है कि बराबर पन्निस टाइमस पे तलू गसन, पन्निस टाइमस पे गुरूब गसन, मशरिक से रोजाना तलू होता है, मगरिब से गुरूब होता है। और इसी तरह इतनी गैलेक्सीज, यीटा स्टार्स, यीटा प्लैनेट्स, आज तक हमने कभी नहीं देखा है कि दो सितारों के बीच में टक्कर हो गई। यकीनन आम हम देखते हैं कि कुसा गाड़ी, हालांकि अगर तारों के मुकाबले में हम गाड़ियों की तादाद का मुकाबला करेंगे, ये ईश्वर का मुकाबला है, मगर फिर भी हम आए रोज खबरों में सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, फलानी जगह पर एक्सीडेंट हो गया, फलानी जगह पर दो गाड़ियों में टक्कर हुई, दो रेलों में टक्कर हो गई, या दो हवाई जहाजों में इस तरह से यसर गो पानवे गो नकुस गो। लेकिन आज तक हमने कभी ये नहीं सुना कि सूरज के तलू होने में देरी हो गई, सूरज के गुरूब होने में देरी हो गई, या अभी तक हमने कभी नहीं ये सुना कि नौज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला बचाए सूरज और चांद की आपस में टक्कर हो गई। बल्कि कुरान पाक से सूरह यासीन में फरमान लशम्स यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार, अल्लाह ने एक ऐसा निजाम बनाया है कि सूरज की मजाल ही नहीं है कि वो चांद को पकड़ ले, और चांद में भी ये ताकत नहीं है कि वो सूरज को पकड़ ले। और वलल लैलु साबिकुन नहार, और ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मुस्तहकम निजाम बनाया है
کہ दिन रात को नहीं पकड़ सकती है और रात दिन को नहीं पकड़ सकती, बल्कि ये यके बाद दीगरे गर्दिश में रहते हैं। गो ये निज़ाम केम बनो, अगर इंसान इस निज़ाम को सोचेगा, अथ निज़ामस वुच, तो वो भी इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इस सारी कायनात का चलाने वाला ये 2 या 3 माबूद नहीं होने चाहिए, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बल्कि ये एक ही माबूद होना चाहिए जिसके हुक्म पर ये तमाम दुनिया की चीजें अपना अपना काम अपने अपने हुक्म के मुताबिक, अपने अपने इज़्ज़त अमन आमुच हुक्म दिन उसके मुताबिक अंजाम देते हैं। तो ये है अल्लाह की शहादत, यानी एक तो नबियों के जरिए और किताबों के जरिए, दूसरा कायनात पर अगर हम देखेंगे कायनात की तमाम चीजें ये भी इस बात की गवाही देते हैं कि इस कायनात का निजाम चलाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। अच्छा, एम पच अल्लाह ताला फरमान वल मलाइका, और इस बात की गवाही और कौन देते हैं? मलाइका। और मलाइका कैसे गवाही देते हैं? मलाइका शिसु नूरी मखलूक जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है और वह हर आन हर लम्हा अल्लाह की फर्मा बरदारी में अपनी जिंदगियां बसर करते हैं, बल्कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, मलाइका के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो हरगिज भी अल्लाह की हुक्म अदूली नहीं करते हैं जिस बात का उन्हें हुक्म दिया गया है। तो ये हुक्म अदूली न करना, और कुछ मलाइका के बारे में है कि वो सिर्फ सजदे में पड़े हैं, कुछ मलाइका के बारे में है कि वो कयाम में है, कुछ मलाइका के बारे में है कि वो रुकू में है, और वो सबसे ज्यादा अल्लाह को जानने वाले हैं। ठीक है, सारे को ज्यादा करीब कुछ मखलूक च खुदायस वो तो फिर अल्लाह कि वो फरिश्ते अल्लाह को देखते हैं, अल्लाह का दीदार करते हैं, अल्लाह के अर्श का तवाफ करते हैं। अगर नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अगर उन्हें अल्लाह की ताकत में या अल्लाह की कुदरत में या अल्लाह की खुदाई में नुक़्स मालूम होता तो क्या वो अल्लाह की फरमाबरदारी करते? क्या वो अल्लाह की इबादत करते? तो इस तरह से मलाइका भी अपनी फरमाबरदारी के जरिए, अपने हुक्म को बजा लाने के जरिए इस बात की गवाही देते हैं कि इस कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। त्रीम गवाही व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त, और कौन गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है? उलुल इल्म, यानी इल्म वाले जो हक पर कायम रहते हैं। प्रहता इल्म बोलने के हैं, बल्कि वो इल्म वाले जो हक पर कायम रहते हैं। इसका मतलब क्या है? यानी आमतौर पर आज के भूषण अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी को भी इल्म दिया, चाहे कुरान का इल्म दिया या इन मखलूक पर रिसर्च कारण और उसका इल्म, अगर सो हक जानित तासुब की ऐनक को और बराबर तमाम तासुब त्रयित अम साथ से रिसर्च करन, आखिर पर वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस कायनात को चलाने वाला कोई एक खालिक और कोई सुपर पावर है। बहरहाल चाहे वो फिर ईमान लाए या ना लाए, मगर दिल में वो गवाही देता है कि इस कायनात को चलाने वाला कोई खालिक और मालिक है। बहरहाल ये आयत मुबारक ये असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारसबंदी के लिए नाजिल हुई है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों इन अहले नजरान के वफद को या इन अहली किताब के इस दीन को ठुकराने की वजह से अपने दिल मुबारक को तंग करते हैं? क्या इनके इन दीन को कबूल करने से या इनकी शहादत से दीन नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हक साबित होगा? ऐसी बात नहीं है, बल्कि दीन के हक होने के लिए अल्लाह गवाही देता है, मलाइका गवाही देते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म वाले और रास्तबाज बंदे इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद। तो आप क्यों अपने दिल मुबारक को तंग करते हैं? आप क्यों इनके पीछे पड़े हैं कि ईमान दिलेबन हक? ऐसी बात नहीं है। एम पच अल्लाह फरमावन कि हुवल ला इलाहा इल्लाहु, इसके बाद फिर से ला इलाहा इल्लाहु आयत मुझे दो लट आमद क्या ला इलाहा इल्ला, पहले शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, तो ये मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो पहले ला इलाहा इल्लाहु है ये यानी ऐलान, ये ऐलान किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। और वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्लाहु, जो दूसरी बार ला इलाहा इल्लाहु का ये ऐलान है, ये असल में किनका कलिमा है? ये किनका कौल है? फरिश्तों का और अहले इल्म का। वो इसमें बज़ाहिर तारुज़ कोई नहीं है। एम पचास हुवल अज़ीज़ुल हकीम, हाँ ये फरिश्ते और ऐलान ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और इल्म वाले बंदे कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल अजीज अल हकीम, वो अजीज भी है और हिकमत। अजीज के मिशवन अल अजीज माने जबरदस्त, यानी जिसका तसर्रुफ पूरी कायनात पर हो, ये सारी कायनात पन्ने तसर्रुफ जिस तरह चाहे उस तरह उसके साथ मामला कर सकता है, उसे कहते हैं अल अजीज। इशारा इसकी तरफ है, यानी इशारा अहली किताबन को खुसूसन कि अल्लाह अल अजीज है, चाहे तो आपके इस ठुकराने की वजह से, आपकी इस गुनाह की पादाश में आपको जल्द ही पकड़ सकता है।
अगर वैसे तो कर सारनी अथ मज क्या पकड़, मगर सती फरमान अल हकीम, वो हिकमत वाला भी है। पकड़ इसलिए नहीं करता है क्योंकि वो हिकमत वाला है। इस पकड़ के लिए उसने एक मौका और उसने एक दिन मुकर्रर किया हुआ है। वहां आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बड़ी नेमत को ठुकराया है और आपने कितने बड़े रसूल की नाकदरी की है। अब आयत में हुवल अजीजुल हकीम, वो जबरदस्त भी है, वो बदला लेने का पूरा इख्तियार रखता है और पूरी ताकत रखता है। लेकिन आज बदला क्यों नहीं लेता है? क्योंकि अल हकीम वो हिकमत वाला है। उसने हिकमत की पेश नजर इस पकड़ को मुलतवी और मौखर करके रखा है उस दिन के लिए जिस दिन पूरा पूरा मुआखजा इन बंदों का, इन लोगों का किया जाएगा। भारत एम पच ब्याह आयत इन्ना दीना इन्नल्लाह इस्लाम, इसमें बहुत तफसील है, इसका दरस इंशाअल्लाह रहमान कल होगा। अलबत्ता यथ आयतस मुतलिक वन बह युस ये आय मुबारका शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु, अच जबरदस्त फजीलत हदीसन मज आमज। क्या फजीलत है? पहली बात आप ये याद रखेंगे, ये साथ ये इंसान का ये आय मुबारका तिलावत करे, कौन आयत शहीद अल्लाह अन्हु, और ये नोट करके रखिए, ये आयत नंबर 18 सूरह आल इमरान। जब भी तिलावत करेंगे इस आयत की, बहरहाल हदीस में आमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत की तिलावत के बाद कहते थे कि शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। जब इस आयत की तिलावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, इसके बाद वो कहते हैं व अना अशहद, यानी मैं भी इस बात की क्या देता हूं, गवाही। व अना मिन शाहिदीन, व अना मिन शाहिदीन हदीस में लफ्ज़, यानी मैं भी किन में से शामिल हो गया, गवाही देने वालों में से शामिल हो गया। और रिवायत में शामिल जो शख्स इस आयत को तिलावत करने के बाद ये कलिमात पढ़ेगा कि व अना मिन शाहिदीन, मैं भी किन में से हूँ, गवाही देने वालों में से हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला कयामत के रोज इस बंदे को खड़ा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला करे अमिस कयामतिक दो अमिस बंदस खड़ा यूसिम कलिमात पढ़े और फिरिश्तों के सामने इससे कहेगा कि ए फिरिश्तों गवाह रहो, इस शख्स ने दुनिया में मेरी उलूहियत की गवाही दी है, यानी एमची म्यान उलूहियत गवाही का दिसमत दुनिया में, आप गवाह रहो। इसके साथ वही वादा है जो वादा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुखलिस बंदों के साथ किया, और अल्लाह अपने बंदों के साथ या अपने वादों के साथ मुकरता नहीं है। और रिवायत में शामिल किया अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को अपने वादे के मुताबिक कहां दाखिल करेगा, जन्नत में दाखिल करेगा। वो ये फजीलत आय मुबारकस। ब्याक रिवायत अत आय मुबारकस मतलब हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु जो जलील कदर सहाबी हैं, यहंदिस घरस में तशरीफ नियो रसूलुल्लाह ये मदीने पाक आए हिजरत कर, तो सभी सहाबियों ने ख्वाहिश की थी और उनकी तमन्ना थी कि रसूलुल्लाह कत तशरीफ थावन सानसी न सानसी घरस में, मगर बहरहाल रसूलुल्लाह ने फिर हुक्म दिया था कि मेरी जो ऊँटनी है उसकी नकील को छोड़ दिया जाए, जहां पर वो बैठेगी वही मेरी रिहाइशगाह होगी। बहरहाल सो खुश नसीब सहाबी यम सिंदिस आंगनस में ये ऊँटनी रुके और थक कड़न सस कुस यह हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो इन्हीं के तशरीफ लिया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। यम रिवायत कर अत हदीसस, तुम फरमान कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो युस शख्स फर्ज नमाजों पत, यानी फर्ज नमाजें कितनी हैं, 5 फजर जोहर असर मगरिब तो इशा, युस फर्ज नमाज पत आयतुल कुर्सी पढ़े, क्या पढ़े, आयतुल कुर्सी जो हम आमतौर पर पढ़ते, और उसके बाद ये आयत तिलावत करेगा शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। आप ये आयत, इसके बाद एक और आयत है आयत नंबर 26 यसन एम पत इस पढ़ो 2-3 दरस पत कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर तुलिजुल लैला फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशा बिगैरि हिसाब। यम गई कस आयत, 3 आयत, एक तो आयत नंबर 18 जो आज हमने दरस में पढ़ी, ब्या गई कि आयत नंबर 26 और आयत नंबर 27। हदीस में आमद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो युस शख्स फर्ज नमाजों पत यम 3 आयत पढ़ बी पढ़ आयतुल कुर्सी, तो उसकी 70 हाजतें पूरी हो जाएंगी। तम सज कस हाजत कर अल्लाह तबारक व तआला पूरी 70 हाजत। और इमाम आमश ये नकल कर रवायत तफसीर इब्न कसीरस में, उन्हें लिखा है कि सबसे छोटी हाजत जो इस बंदे की पूरी होगी वो होगी उसकी मुकम्मल मगफिरत, यानी मुकम्मल मगफिरत गैस अमिस बंदस सारे लकुट हाजत 70 हाजत मुझ अल्लाह तबारक व तआला अमिस कर पूर आयात पढ़। इसीलिए
اکثر بزرگان دین سے ان آیات کا فرض نمازوں کے بعد پڑھنا ثابت ہے. رب العالمین منگو دعا کہ سہ دین اس یتھ آیہ مبارکہ پہ عمل کرنے توفیق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.